Okay. Hari Om. Chapter 10, as you know by now, is the chapter of the Vibhuti of Bhagwan. Vibhuti means his prabhav, his influence, his stage, his influence on all of us. And also the very fact that none of us actually can even be functioning if that Vibhuti was not part of us, part of our lives. अब ये हम भक्ति प्रकरण की ओर मुड़ रहे हैं. We've done some Sankhya Yoga, that is Gyan Yoga in chapter 2, and also Karma Yoga in chapter 3, and moving on, we also looked at Bhakti Yoga, we looked at Dhyan Yoga, and now we are moving slowly towards Bhakti Yoga from all these ways of reaching God. Bhakti Yoga means we have to have an understanding that everything that we are today, we would be unable to function without that underlying consciousness. For example, our entire body is full of organs, but all these organs by themselves cannot function. There has to be something to power it, something to dynamize it. So when we say that, okay, I have eyes, the eyes are organs. And then we say, how do you know you have eyes? Because I can see. मेरे पास दृष्टि है. अच्छा, अगर दृष्टि है और आप बाहर देख सकते हैं and you have that organ, can you describe or touch दृष्टि? Not आँख, not chakshu, but दृष्टि. The capacity and the capability of vision, उसको क्या आप छू सकते हैं, describe कर सकते हैं, taste कर सकते हैं, cut कर सकते हैं? No, you cannot, because that is an abstract. That is the power of consciousness which is giving us vision. So also everything that functions in the world is subtly powered by that one consciousness only. इसलिए हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम ये क्रिया कर रहे हैं और हम फला कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं. आई एम ब्रिंगिंग अप दिस फैमिली. हु इज दिस आई? I is just a bundle of flesh and bones, a body. Now this body cannot have its own sentiency. It is not sentient unless there is consciousness dynamizing it, actually just like electricity dynamizing your appliances. Without that, the appliances are just jad. Our body and our man is jad. We keep repeating that because otherwise we say, no, I am doing it. अरे हम तो जड़ हैं. Ask any doctor who puts us on the operation table and he will see only flesh and bones and veins and atoms and molecules. He cannot see consciousness. He cannot even locate it. Where is the location? So we are jad actually, but there is an invisible dynamic force. क्या हम उसको पहचानते हैं? नहीं, हम छू नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, मतलब सेंसेस से. तो कहते हैं कि नहीं, शायद नहीं है. How can we deny the very presence of that Paramatma or that Atma, in the presence of which we are able to function, to speak, to love, to like, to perform, to have success, to think and to understand? All these are powers, all these are capacities. They cannot function through a jad body and a jad mind, a sthul mind, which is a gross body. That if we understand, we say, okay, I cannot experience it, I cannot see it or touch it, but yes, I accept the presence of that dynamic energy in me. So is it only in you? No, certainly not. It dynamizes the entire world. So Arjun was now curious to know. By the in 10th chapter, he had started saying that keshu keshu cha bhaveshu. अगर मैं नहीं देख सकता, नहीं experience कर सकता, छू नहीं सकता, तो फिर ये बताइए भगवान कि केशु केशु च भावेशु, किन किन चीजों में मैं आपका ध्यान करूं या आपको पहचानूं? तो भगवान कहते हैं, अरे ये कैसे हुआ? मैं तो हर जगह हूं. तो मैं कितनी चीजों में, हंतते कथयिष्यामि, मैं आपको अलास किन किन चीजों का बयान करूं? इस किसके बारे में? इस डिवाइन पावर या एनर्जी के बारे में. हंतते कथयिष्यामि दिव्या, डिवाइन पावर. नास्त्यंतः, भगवान ने कहा था 10th चैप्टर में, नास्त्यंतः, इसका तो कोई अंत है ही नहीं. तो जिस चीज का कोई अंत नहीं है, मैं कब तक डिस्क्राइब करूं?
तो एक बार एक स्वामी ने कहा था कि देखो, अगर समझाना है कि क्ले क्या है, तो मैं एक पॉट लूंगा एज अ पॉटर, और उस पॉट को मैं ध्वस्त करके, क्षीण करके, डिस्ट्रॉय करके, क्रम्बल करके कहूंगा देखो ये है क्ले, ये क्ले से ही पॉट बना है और पॉट क्ले ही है। ओके, ठीक है, तो हमको क्ले दिख गया। अब हम हर एक पॉट को ध्वस्त करके तो नहीं बताएंगे कि देखो क्ले, फिर देखो क्ले, फिर देखो क्ले। अरे एक बार दिखा दिया, एंड यू नो दैट एवरी पॉट इज मेड ऑफ द सेम क्ले. So that consciousness which dynamizes me also dynamizes every single sentient being, and also it powers all their capacities. So एक पॉट को हमने अगर देख लिया तो समझ में आ गया कि पॉट का रंग रूप होता है, लेकिन क्ले इज वन, इट इज द आधार ऑफ ऑल द पॉट्स, द तत्व ऑफ ऑल द पॉट्स. ये समझने के लिए फिर भी अर्जुन कहते हैं नहीं, हमको और भी विभूतियां बताओ. अब उनके मन में भक्ति भाव जागृत हो गया है अर्जुन के मन में. वो कहते हैं नहीं, और बताइए और बताइए. तो भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सबका मूल एक ही भगवान है. दैट सेम कॉन्शियसनेस विच पावर्स एवरी सेंशियंट बीइंग. इट इज दैट इनविजिबल बट अनंत, अव्यय, ऑल परवेडिंग एंड Shashwat, never-ending energy and power. Why do we say never-ending? Because it's not even destroyed after our own death. Yes, is that so? Yes, there are many ways to prove that. That after death we still continue as we are in spirit, not in this body. Okay, so Bhagwan, now you can tell me something more about yourself so that I have great bhakti in you. At least I will have shraddha in you. The whole purpose is that अगर हमने अपना मन किसी भी higher चीज पर, वो तत्व, that is the highest truth, उस highest truth पर अगर लगा दिया तो हो सकता है कि तब हमारा मन इन छोटी छोटी petty matters of this संसार, जैसे सुख दुख, मान अपमान, जय और पराजय, ये सब चीजों से हमारा मन शायद हट जाए, ऊपर उठने लगे. जैसे कि हम देखते हैं कि when I get into, or anyone gets into social service, when they are involving themselves into the lives of others, they want to make a difference in the life of underprivileged people. That's a higher cause for them, and therefore they become a little less careful about their own food and sleep, and they say okay, chalega, it's okay, but somebody else needs my time, my resources much more, and they reach out. So when we attach ourselves even in the sansar to anything higher than our own petty mamatva, that is myself, mera, and our own aham, then we find ourselves expanding in our personality. In the same way, this is of course at the sansar level, but when we attach ourselves, when we begin to understand that highest reality, the ultimate truth about existence, that consciousness, अब उसको अटैच कर दिया, तब तो हमको संसार में जकड़े रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं. Nothing can hold me fast to this petty sansar of sukha and dukha and shita and ushna, which is heat and cold and all those discomforts which we keep complaining about in a petty way all day long. The pettiness of samsar we will have transcended. Bhagwan is saying, yes, you should know my vibhuti, maybe because then you can lift yourself by yourself. Okay, so how is it that we can do that? Bhagwan said, okay, listen to some of my vibhutis, and in chapter 10 he has enumerated so many. First he said there are anant, innumerable, uncountable, and yet I will give you some. Some means around 75 to 80 vibhutis in chapter 10, and they are far too many for us. So I'll just read one or two just as a quick recap. In verse 32 of chapter 10, Bhagwan said, अध्यात्म विद्या विद्यानाम. सभी विद्याओं में, दुनिया में तो बहुत सी विद्याएं हैं. So you have the knowledge of the science of astronomy and medicine and agriculture and statecraft, which is politics. You have so many vidya, but the highest vidya is what? I am in that highest vidya, that is adhyatma.
self-knowledge is the highest knowledge, because without that, how can we ever leave this world? Without having known our true identity, our true self, imagine leaving this earth कि जन्म लिया और 85, 90, 95 तक हम लोग जिए, ओके, दैट्स ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी तक जिए, लेकिन उस सेंचुरी में हमने क्या देखा, क्या अनुभव किया और क्या सीखा? Nothing. I am still part of संसार. I want my कामिनी, that is my pleasures of the world. I want my कीर्ति, कोई मुझे recognize कर ले, थोड़ा मुझे मान सम्मान दे दे, कीर्ति. I want my कांचन, which means I want my wealth, I want property, I want to collect this and that, I want to accumulate. हाँ ठीक है, we can do that to some extent. कामिनी, कीर्ति, कांचन. लेकिन अगर हमने 1 सेंचुरी, ये समझ के कि 100 साल जीने वाले हैं, हमने अगर पूरा जन्म निकाल दिया, तो फिर that is a life which has actually been wasted. We can call it wasted because the purpose of life was not that. Bhagwan has said in many places that to know me, that is the Paramatma, or to know the self, which is Atma, the ansh of that Paramatma is me, the self. Same thing. To know the self is the only and only highest goal of human existence. नहीं तो हम humans क्यों बनते? हम किसी भी जानवर योनि में पैदा हो जाते, and I would be fine. I would still be looking for my pleasures and comforts and companions. हम तो वही काम करते. तो हमको मनुष्य जन्म जब दिया गया, तो ये भी समझना जरूरी था कि what is the purpose? Humans are the only creatures capable of self-knowledge. इन किसी भी और योनि में ये मुमकिन है ही नहीं. तो फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम इसको जाया ना करें. वी कैनॉट वेस्ट, वी कैनॉट अफोर्ड इट. एक्चुअली हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है. इट इज नॉट इजी टू अटेन. दैट हैज ऑल्सो बीन सेड. सो एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि एक जंगल में बहुत ठंड थी, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आजकल है, और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि पास के जंगल में एक किसान गया और वो लकड़ियां तोड़कर लाने लगा. अब वो ये नहीं जानता था कि ये जंगल किस चीज़ का है. वो लकड़ियां तोड़ के लाया और बोला कि मैं इसको जला जला के इसका कोयला बना के रखूंगा, ताकि मुझे वो पूरे विंटर काम आए. एक वाइज मैन, एक मुनि वहां से गुजरने लगे और बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बोला, कुछ नहीं, मुझे तो जीना है. आई हैव टू सर्वाइव. ये तो मैं लकड़ी का कोयला बना के रख रहा हूँ. तो मुनि ने कहा, लकड़ी को पहचानो तो सही, ये है क्या? वो बहुत दुर्लभ जंगल था. इट वॉज सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी थी वो. हमको मनुष्य जन्म एक चंदन की लकड़ी दी गई है, और हम इस कामिनी, कीर्ति, कांचन के पीछे उसको कोयला बना बना के जला रहे हैं और कह रहे हैं, वाओ, आई एम वार्म, आई एम कंफर्टेबल, आई एम फेमस, आई एम रिकग्नाइज्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई हैव सो मच प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस देखो, मेरी गाड़ियां देखो. ओके फाइन, बट ये चंदन की लकड़ी का कोयला बनाने के बराबर काम हुआ. तो इसकी कीमत समझाने के लिए कभी कभी ये दृष्टांत दिया जाता है कि वी आर एक्चुअली बर्निंग अवे आवर लाइफ, आवर डेज in useless pursuits, because these pursuits are not going to go with us. पीछे तो कुछ नहीं रह जाने वाला है. पीछे तो सब कुछ रह जाने वाला है, हम नहीं रहेंगे. तो इसीलिए शंकराचार्य 8th सेंचुरी जो सेंट हुए हैं, who was a great revivalist and a reformer of Hinduism, उन्होंने कहा है, उनके छोटी सी एक किताब है भज गोविंदम, उसमें कहा है उन्होंने, दिनियामिनियम सायं प्रातः. एक नियम से सायंकाल होता है, प्रातः होती है, इवनिंग होती है, सुबह होती है. शिशिर वसंतो पुनरायातः, और समर्स आते हैं, विंटर्स आते हैं, और एक नियम से क्रम चलता रहता है. काल क्रीड़ा दिच्छति आयुः. आपने बस ये दिन और रात और ऋतु बदलते रहे और हमारी आयु ढलती रही. बस इतना ही किया. किसमें? काल क्रीड़ा. काल एक्चुअली काल ने हमारे साथ क्रीड़ा किया है, बिकॉज आयु इज मूविंग फॉरवर्ड. काल इज टाइम. Time is playing a big trick on us, and we cannot afford to lose ourselves in activities which are superfluous. Even Einstein said that had I known that there is this highest truth, I would have gone to the scriptures instead of trying to figure out I would have found out about the cosmos.
instead of just trying to find out about relativity of light and sound, he said too late in life. उनको भी बहुत रिग्रेट हुआ था आइंस्टाइन को कि उन्होंने कॉस्मोस के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं उन्होंने इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में डिस्कवर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो फिर कहने लगे बाकी मेरी नॉलेज तो मुझे सुपरफ्लुअस लगने लगी है उसके मुकाबले। किसके मुकाबले? उस उत्तम, उस परम नॉलेज के बारे में, विच इज द लास्ट अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रूथ अबाउट एग्जिस्टेंस, दैट कॉन्शियसनेस विच परवेड्स इन कॉस्मोस एंड इन एवरी एटम इन आवर बॉडीज। तो शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि क्या आपने इस काल के क्रीड़ा में दिच्छति आयु, अपनी आयु बस दान कर दी? तो ये तो नहीं हो सकता। तो 32nd वर्स में कहा है अध्यात्म विद्या, सेल्फ नॉलेज इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द विद्याज। एंड आगे कहते हैं वादः प्रवदता महम, वादः प्रवद यानी कि जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हैं या लेट्स से डायलॉग्स हैं उसमें मैं वाद हूँ, मैं हाईएस्ट काइंड ऑफ डायलॉग हूँ। वाद, वाद यानी कि तो फिर दूसरे टाइप्स ऑफ डायलॉग्स क्या होते हैं? वेल दूसरे टाइप्स ऑफ डायलॉग्स तो होते हैं, एक होता है जल्प। जल्प यानी कि मैं अपनी ओपिनियन रखने में इंटरेस्टेड हूँ, बस आप चाहे जो भी बोलते जाएं या सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आई एम गोइंग टू प्लेस माई ओपिनियन, माई ग्रैंड एक्सपीरियंस ऑफ 80 years। मैंने भी जीवन जिया है भाई, मुझे भी कुछ समझ है जिंदगी के बारे में तो मुझे आप क्या समझा रहे हो कृष्ण के बारे में, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में? मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ। तो जल्प एक तरह का आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें सिर्फ मेरी ओपिनियन महत्वता रखती है, दैट इट टेक्स सुप्रीमेसी and therefore I learn nothing. The one who places only and only his opinion above the quality of listening to what is being said actually ends up learning nothing or growing in no way. Spiritually there is no growth. दूसरी तरह का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वित्तंडा। वित्तंडा ये होता है कि चलो मेरी ओपिनियन भी छोड़ो, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आप जो भी कहेंगे मैं उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट रेडी रखूंगा तो काउंटर आर्ग्यूमेंट करते करते आप सुनने के बजाय कोई नया नॉलेज या अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कोई चीज, अपने ग्रोथ के लिए कोई चीज रियली सुनने के लिए आप तत्पर नहीं हैं। आप कहते हैं कि आई वांट टू काउंटर योर आर्ग्यूमेंट बिकॉज आई बिलीव आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। तो आप देखेंगे कई लोग टेलीविजन पे ये बहुत होता है। दैट्स व्हाई वी स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर्स watching a lot of Vittanda and Jalpa, and we end up learning nothing. We have wasted those hours which we could have spent in reading the scriptures or listening to some of the talks by Swamijis on YouTube. We could have spent our time fruitfully, more meaningfully in n number of ways. But Vittanda or Jalpa में जब हम पढ़ते हैं, we don't grow. So Bhagwan says, Vadaha. Vadaha is the highest form of argument. उसमें क्या होता है? उसमें यही है कि the listener says, yes, I am in a discussion, but my highest purpose is to know the tattva, to know the param tattva, to know the truth. तो आप चाहे जो भी बोले, मुझे समझ में आए न आए, मेरा मन उसी में चलता रहेगा कि किसी तरह मुझे वो परम तत्व की ओर ये आर्ग्यूमेंट ले जाए या डिस्कशन ले आ जाए। तो भगवान कहते हैं नेचुरली वाद इज द हाईएस्ट फॉर्म। It doesn't mean literally. Literally, Bhagwan is not in any of these sansari things, but it is a way of Bhagwan to say in the Gita that wherever you see splendor and excellence and magnificence और excellence जहाँ आप देखते हैं तो मेरी तो महिमा है। I am there in all the excellence. In people, in you also. हाँ, आप में भी जितनी भी क्षमताएं हैं मैं ही तो हूँ। लेकिन हर एक विशेषता जो हम दुनिया में देखते हैं, हम सोचते हैं ये विशेषता तो फला फला व्यक्ति की है या इस वस्तु की है या इस घटना की है, परिस्थिति की है ये विशेषता, द यूनिकनेस, द मैग्निफिसेंस। नो, भगवान सेज अगर आप हर एक विशेषता को उस संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का सोचेंगे और उसी का सोच के रह जाएंगे तो you will remain in the संसार, you will remain entangled in the संसार और मन संसार में ही फंसा रह जाएगा, संसार में ही फंस जाएगा।
तो इसलिए मैं हर चीज में संसारी चीज ही समझा रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं हर एक संसारी चीज के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब भी उस पर मन जाए, तुम्हारा मन आकर्षित हो, when you are attracted to excellence and to beauty and to splendor in anything, in beauty, you can think that this is me, this is the splendor and mahima and vibhuti of God, because without him that uniqueness cannot exist. तो तुम तुरंत मन शिफ्ट कर जाओगे संसार से मेरी ओर। बस चैप्टर 10 में बताने का तात्पर्य पूरा यही है, इतनी सारी विभूतियां, कि शिफ्ट योर माइंड टू मी व्हेनेवर यू सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड एक्सेलेंस इन द वर्ल्ड। इसलिए 7th चैप्टर में भी उन्होंने इसी बात को कहा था, आस्थित सही युक्तानाम, आपकी आस्था, आप स्थित रहिए और युक्त रहिए उस थॉट में कि ये जो ब्यूटी, ये एक्सेलेंस, ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी आती कहाँ से है, लोगों में जो है और मुझ में भी है और आप में भी है और परिस्थितियों में भी है, ये आती कहाँ से है। हर बार ये सोच के तुम मेरा ध्यान करो, युक्तानाम, एकदम युक्त होकर, और मामेवानुत्तमाम गतिम, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मामेवानुत्तमाम गतिम, तुम वेरी इजीली यू विल रीच मी। ये तो 7th चैप्टर में उन्होंने प्रॉमिस किया था, यू विल रीच मी, पर मेरे तरफ मन तो मोड़ो, एटलीस्ट अंडरस्टैंड वेयर आई एम एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर अटेंशन, तभी तो मैं मिलूंगा। मैं हूँ हर जगह, पर मैं नहीं मिलने वाला अनलेस योर अटेंशन कम्स टू मी। सो 33rd verse, 10th chapter, he had said, Dhataham Vishvato Mukhaha. I am, of course, the very basis of everything. Vishvato Mukhaha यानी इस विश्व में चारों ओर मुख रखने वाला. Literally, it means to see in all directions. But if you see the deeper meaning, it simply means what is it that cannot escape your karma phal. Karmic principle is the thing that we cannot escape. Karma phal is what we cannot escape. वो चारों दिशाओं में है, यानी कि it is always governing our life. हम जो कुछ भी करें या सोचें, उसके मुताबिक द कार्मिक प्रिंसिपल, जो कर्म फल हमको मिलता है पूर्व कई जन्मों की वजह से और अभी के जन्म की वजह से भी, वो हमारे साथ हमेशा रहता है. एंड दैट कार्मिक प्रिंसिपल इज विश्वतो मुखः, बिकॉज इट इज द वन विच नोज कि इनको इस समय किसको किस समय क्या चीज मिलनी चाहिए, कितनी मात्रा में, इन व्हाट मेजर शुड इट बी रिवॉर्डेड, हु शुड बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड. एवरीवन इज नाउ गिवन द जस्ट ड्यू. सबको कैसे जस्ट ड्यू मिल जाते हैं? हमको तो लगता है नहीं, इनजस्टिस है भाई, हमने तो बहुत मेहनत की थी, आई डिड सो मच सोशल सर्विस और देखो मुझे इतनी बीमारियां हो गई. नो, वी थिंक दैट वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वन शॉर्ट लाइफ. इस जीवन का हमको अपना पाप या पुण्य जो भी है, पुण्य दिखाई देता है, हमने इतना पुण्य किया है, लेकिन इतने जन्मों का एक पूरा विश्व तो मुखः, इतने जन्मों का व्यू, वर्ल्ड व्यू तो हमारे पास नहीं है. किसके पास है? कृष्ण. कृष्ण हैज सेड मेनी टाइम्स टू अर्जुन, लुक यू कैन नॉट सी योर प्रीवियस लाइफ, आई कैन सी ऑल योर लाइफ, सो आई नो वेयर यू आर राइट नाउ इज व्हाट वेयर यू नीड टू बी. हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस वक्त हैं और जो कर रहे हैं वही होना चाहिए उस वक्त. इट्स गुड फॉर अस. वी मे से आज नो इट्स टू अनकंफर्टेबल, आई एम नॉट, आई डोंट थिंक गॉड इज अ जस्ट king. First of all, he is not a king. Secondly, he is not an entity. He is not a data. He is actually just the principle, a principle of energy. And how do we get our phal? It is through our own actions. Karmic principle is also a kind of the giver of justice. So you can say it in that way. Vishwato mukhaho. आगे चलते हुए भगवान कहते हैं, वर्स नंबर 34, मैं कौन हूं, मुझे कहां पहचानो? मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम. मृत्यु में, अमंग ऑल द थिंग्स विच आर टेकर्स. टेकर्स यानी जो चीज हर लेती है, जो चीज डिस्ट्रॉय कर लेती है, हर चीज जो हमसे छीन लेती है चीजें, वो उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? मृत्यु.
मृत्यु तो सब कुछ छीन लेती है. मृत्यु is the ultimate taker away. Because there you don't even require any paperwork, no RT-PCR certification, nothing is mandatory. कोई भी NOC नहीं चाहिए, no paperwork, 1 minute gone. 1 minute नहीं, 1 second. तो इतना डिसिप्लिन वे में जन्म और मृत्यु का साइकिल चल रहा है, लेकिन मैं मृत्यु उसमें हाईएस्ट क्यों बताया गया है भगवान ने? फर्स्ट ऑफ ऑल, we had stopped here where we were speaking about 4 things which we need to understand about mrityu. Because unnecessarily there has been a lot of fear and misunderstanding and miscommunication down the ages about mrityu. We have ourselves miscommunicated to ourselves because of our attachment to our loved ones and to our bodies and to our property and to our love. That's why we say कि मृत्यु must be very bad because all this is gone. First thing we must understand, मृत्यु का सबसे पहला सिद्धांत है, it is the great leveler of the saint and the sinner, the prince and the pauper. वो मृत्यु के समय नहीं देखती कि अरे ये तो राजा है, अरे ये तो बहुत पुण्य कर्मी है, अरे इन्होंने तो बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, चलो इनको 50 साल और दे दिया जाता है. No. It is the leveler. First of all, it levels everyone down to one level. That means in the grave, you cannot make out who is lying there. Is it a prince or a pauper? Is it a saint or a scoundrel? How can you tell? You can't tell because it's only a body lying there. Actually, देखा जाए तो when 2 people are asleep, अगर ट्रेन वेन में अगर हम कभी जाएं और ट्रेन में 2 बर्थ है, उसमें 2 लोग सो रहे हैं और दोनों को देख के पता ही नहीं चलेगा कि कौन सेंट है कौन स्काउंड्रल है, लेकिन हो सकता है उसमें एक सेंट हो एक स्काउंड्रल हो. वो क्यों? क्योंकि हम उस समय वी हैव सस्पेंडेड आवर अवेयरनेस ऑफ माइंड एंड बुद्धि एंड इट इज साइलेंट, इट इज जस्ट सस्पेंडेड. तो डीप स्लीप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ death. Death is only giving up this particular body permanently. But when I give up this body, the second thing to understand is that I am giving up only this body. Then what is the fear all about? Because when I leave this body, everything that the body has been associated with. So my body has been associated with comfort and discomfort. Air conditioner चाहिए या फिर हीटर्स चाहिए हमको, शीत उष्ण यानी डिस्कम्फर्ट ऑफ द बॉडी से हमारा सुख और दुख और सब कुछ जुड़ा हुआ है. मन सुख दुख से, मान अपमान से, जय पराजय से, सक्सेस फेलियर से, इन सब चीजों से हमारा मन जुड़ा हुआ है. मन इज ऑल्सो कॉल्ड पार्ट ऑफ द जड़ वर्ल्ड. ओके, वी मे से इट इज वेरी वेरी सटल. हाँ, सटल है बट इट इज स्टिल जड़. वाई जड़? बिकॉज इन वेदांतिक लैंग्वेज इट डजंट हैव अ सेंशियंसी. Sentiency यानी it cannot have the power to know itself. Can the mind know itself? I know what is going on in my mind right now. So if I know my mind, then I must be the knower. How can I be the same thing? So मन is also जड़. जब हमारी देह, when I drop this body, all that I am doing is I am giving up this body, this mind, this identity, this आयु, this औधा and this प्रतिष्ठा जो भी हमने पाया हुआ है इस लाइफ में, nothing else, और प्रॉपर्टी और लव्ड वंस, बस रिलेशनशिप्स, इतना ही तो हमको गिव अप करना है. लेकिन ये याद रखें कि हमने पूर्व बहुत बहुत जन्मों में हर बार प्रॉपर्टी, वाइव्स, हस्बैंड्स, चिल्ड्रन, अपने पोजीशंस और पावर सब कुछ छोड़ के ही निकल के आए हैं इतने जन्मों से. सब कुछ छूटा हुआ है पीछे. तो इसीलिए भगवान ने 2nd चैप्टर में कहा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जस्ट लाइक वी ड्रॉप आवर ओल्ड क्लोथ्स and then we don new clothes, we cast away our old clothes. Navani grihnati naro parani. नवानी गृहणाति नरोपराणी, तो हमको नए कपड़े तो चाहिए होते हैं. तो आई एम ओनली ड्रॉपिंग ऑल दिस. 3rd थिंग, आई एम ड्रॉपिंग मेमोरीज.
बिकॉज अगर मेमोरी कैरी ओवर होती देन आई would have such a lot of distress about the lost property and wives and husbands and friends of my so many previous lives. I would be grieving about that too. तो ये भगवान की ग्रेस है कि कम से कम इतनी सारी यादें तो नहीं सताती हमको, क्योंकि हमको वो भुला देते हैं. कब? मृत्यु के बाद ये सब भुला दिया जाता है, so that we can lead a sane life. And the fourth thing to remember about Mrityu is that whatever we have gained as our sanskar, these are the impressions of the character. जो हमारा स्वभाव बन जाता है. So if I have learned to be शांत और संतुष्ट और दयावान or to be a seeker after truth, don't think that this is going to die. That is the whole thing. This will not be destroyed. In fact 6th chapter में अर्जुन ने यही पूछा था कि भगवान मैं कितना भी अध्यात्म कर लूं और भगवान की भक्ति कर लूं, स्क्रिप्चर्स पढ़ लूं और ट्रूथ के ऊपर अपना अग्रसर रहूं. I want to learn the truth. But if I die, everything will be lost again, just like my property and wealth and fame. Bhagwan had assured him in the 6th chapter and he had said, तत्र तम बुद्धि संयोगम. आपका जो बुद्धि के साथ, बुद्धि इस सेंस में यूज किया संस्कार के संयोग, उसके साथ जो आपका संयोग हुआ है, लभते पौर्व देहिकम, आगे आने वाले हर जन्म में वो आपको उसका लाभ मिलेगा. यानी कि अगर हम यहाँ बैठे हैं इस समय और हम अध्यात्म का चिंतन कर रहे हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट, वी कैन नॉट बी सिटिंग अप इन द मिडल ऑफ एन आफ्टरनून व्हेन वी कुड बी स्लीपिंग और वाचिंग टीवी और chatting with friends or just lazing or even doing some stock market work, but we are all here right now, which means that something has driven us here. And that something driving hasn't, I have not done anything, मुझे पता नहीं, I just feel like it doing, ऐसे कहते हैं लोग. वो feel like जो आता है ना, that स्वभाव is a carry over impression of previous lives of अध्यात्म practice. ये जो प्रैक्टिस हमारी होती है स्पिरिचुअल, वो कभी नहीं क्षीण होती. बट इज द अदर वे अराउंड ऑल्सो. मैं जितना मटेरियलिस्टिक हो जाऊंगा, कंज्यूमरिस्टिक, हमारी अगली लाइफ में हमको उतने ही मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म में धंसना पड़ेगा. इट अप्लाइज बोथ वेज. बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट दिस संस्कार. That's why we are here out of millions of people sitting on for the northern people on a freezing afternoon, and for many of us here in Bombay it's quite warm. So why are we doing it? Something is pulling us. So that pulling is called a previous vasana. This vasana is a word used in Vedanta which means a tendency formed through previous impressions of many lives. Vasana. तो हमारी अगर स्पिरिचुअल वासना है तो उन्होंने बोला है भगवान ने, लभते पौर्व देहिकम, आपको मृत्यु के बाद भी मिलेगी. सो डोंट थिंक दैट मृत्यु इज सच अ बैड थिंग, एंड ऑल्सो डोंट थिंक कि ये एक ही जन्म का मामला है तो ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, योलो, यू ओनली लिव वंस. नहीं, इस लाइफ में आई कैन नॉट अफोर्ड टू मेक कोल फ्रॉम चंदन. इसीलिए शंकराचार्य जी, अगेन शंकराचार्य जी who was the revivalist, he said in Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Moodha Mate. Don't be a fool. Moodha is a fool. Don't Bhaj Moodha Mate. Samprapte sannihite kale नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करने. आपकी कोई भी नॉलेज जो आपने जमा किया है अबाउट फाइनेंस, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मेडिसिन, मैनेजमेंट, आपका जो भी फील्ड है, आप कुछ भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करने, आपको रक्षा नहीं मिलेगी. रक्षा यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. चाहे कितने भी एक्सीडेंट हो जाए हम अपने आर्किटेक्चर या साइंस में, जो भी है. दैट मीन्स भगवान इज सेइंग, सिंग द प्रेजेस ऑफ मी द लॉर्ड इवन एट द डेथ्स डोर, बिकॉज वी आर एक्चुअली वी आर एवरी मोमेंट एट डेथ्स डोर.
How do you know I won't go out, cross the road and be run over by a bus? How do I know which is my last moment? Every moment we are at death's door and still we say कि अभी भगवान को याद करने का समय नहीं आया है पर भगवान का कब याद करेंगे? I mean when? So there is no such time as the best time. Every time is now. Bhagwan is with us and there is no best time for it. So worldly knowledge will not save us. Nahi nahi rakshati. Moving forward, where else is my vibhuti? Verse 34. Kirti Shrirvakya Narinam. Narinam, these are some of the qualities which have a feminine gender. Doesn't mean that only females have these qualities. कहीं कहीं इंटरप्रिटेशन लोग ऐसे कर देते हैं गीता पढ़ के कि ये क्वालिटीज फेमिनिन क्वालिटीज हैं. अरे नहीं, सबके पास हो सकती हैं. कौन सी क्वालिटीज? वाक, कीर्ति, श्रीर वाक्य. पहले दो शब्द जो हैं सेकंड लाइन में, सबसे पहले वाक की बात करेंगे. वाक मीन्स वाणी. विच वाणी इज द सुप्रीम मोस्ट? भगवान इज सेइंग naturally that vani which is satyam vada, that speaks only the truth, and priyam vada, that speaks tenderly. And even if someone has made a mistake, or if someone is taking my advantage of me, or if someone is trying to cheat me, and I know it and I understand it and I am just compassionately priyam vada, just say okay, I don't want to be part of this. And hitam vada, अगर बात करना ही है तो ऐसी बात करो कि किसी का किसी तरह से हित होता रहे, किसी का कुछ फायदा होता रहे, छोटा मोटा. हितम वद, प्रियम वद और सत्यम वद. अगर हम ये तीन वाणी बोलेंगे तो हमारी वाणी इतनी उत्तम हो जाएगी कि लोग फिर आकर्षित होंगे और अपने आप ही सेकंड चीज जो है इन द सेकंड लाइन, कीर्ति, कीर्ति अपने आप खिंची चली आएगी. एंड दिस इज द सेकंड क्वालिटी that we can gain, and Shrir Vakya brings Kirti. Now, Shri is another quality. Shri is prosperity, which means that when you are recognized and when you have certain higher qualities, in some form prosperity is attracted to you also. This is one of the beliefs. So prosperity, Kirti and Vak, these are three qualities which are actually visible outside in the world. But और भी qualities हैं नारी नाम, वो हैं नारी नाम यानी नारियों की नहीं, they are in the feminine gender when we write it. कीर्ति श्री वाक्य. स्मृतिर मेधा धृतिर क्षमा. स्मृतिर मेधा धृतिर क्षमा. Smriti, memory, which is carried forward. Now we carry a lot of memories, good and bad. But I like to believe that Bhagwan has meant that memory is the best for you, which you carry about learning, about what you have read in the scriptures, what Bhagwan has said about keeping your mind on the highest, in everything, on the highest truth. इन सबको हम जब याद करते हैं, जो भी हमने महात्माओं से, स्वामी से सुना हुआ है, तो वो स्मृति brings us great high character and also kirti. So it is the highest smriti of the good things. Medha. Now medha is another beautiful quality. It means actually wisdom, but it's not any kind of wisdom. क्योंकि हम कहते हैं हमको ज्ञान है, अच्छा काय का, आर्किटेक्चर का, इंजीनियरिंग का, वो तो केवल ज्ञान है. Wisdom is where you can keep your buddhi steady. Steady on what? On the highest truth. कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मेरे जिंदगी में सक्सेस हैं, फेलियर्स हैं, हाईज एंड लोज हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं या एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैं, वेल्थ हैं, बट आई हैव टू से कि ये सब तो भगवान का है. मैं इसमें क्यों अपना मैं ममत्व लगा के, अहंकार लगा के बैठा हुआ हूँ? वो विजडम जो है ना, उसको जब हम अपने स्टेडीनेस से पकड़ लेते हैं, क्लिंग ऑन टू दैट स्टेडीली, वो विजडम को मेधा कहा गया है. मेधा. So it's not any kind of wisdom. And Shama. Shama is again a beautiful quality where I may have the power to punish someone,
to give someone back in their own coin. I may have that power because someone has been mean to me or nasty to me or cheated me, but I choose, suppose I choose not to use my power of revenge or avenging. That is Shama. And you know how much strength it takes not to use the power which you have and which you are tempted to use, क्योंकि किसी ने गलत किया हुआ है. तो वो पावर जो हम दिखाते हैं ना कि नो, आई विल नॉट यूज दैट पावर ऑफ रिवेंज, वो होती है क्षमा. इट्स नॉट एन ईजी थिंग. दैट्स व्हाई फॉरगिवनेस बोलने में आसान लगता है. ओके, यू कैन फॉरगिव. इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स. एंड धृति. धृति इज अगेन अ क्वालिटी where we may have accepted certain higher principles. Like for example, Satyam Vada, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए. सपोज हमने कह दिया कि हम सत्यम वद, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे. अगर वो कोई लोग कहते हैं कि छोटी सी तो बात है, कह दो ना, लेकिन छोटी सी बात भी असत्य ही होती है. So I have never understood why people make the difference between a big lie and a small lie. A lie is a lie, and that disintegrates the personality as much as any other lie. Lie माने झूठ बोलना. तो सपोज हमने या किसी ने अपने हाईएस्ट प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, कोई भी हाईएस्ट प्रिंसिपल्स कि सत्यम वद, हितम वद, और मैं दान करूंगा और तब करूंगा. अगर वो प्रिंसिपल्स में वो स्टेडी है, तब उसको धृति कहा जाएगा. होल्डिंग ऑन टू द हायर प्रिंसिपल्स इज धृति. आई एम श्योर यू कम अक्रॉस मेनी नेम्स because in Puranas they were also the names of the daughters of one of the kings. I forget his name. वो तो कहानियों में पिरोया जाते हैं ये सब ताकि कॉमन मैन को याद रहे. पुराणों को कॉमन मैन के लिए लिखा गया था ताकि कहानियों में पिरो पिरो के वैदांतिक सत्य बता दिए जाएं. तो they were called the daughters. इसलिए ये सब नाम हम आसपास सुनते भी हैं. कौन से? कीर्ति, श्री, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा. ओके, ये सब भगवान की विभूति है. क्यों भूल रहे हैं? तो अगर हम क्षमा करने की शक्ति रखते हैं तो आई कांट से ओ यू नो समथिंग, आई हैव द कैपेसिटी टू फॉरगिव एंड आई एम ग्रेटर देन दैट पर्सन. और फॉरगिव करने के बाद यू फील ग्रेटर ऑल्सो कि वो जो ना कर सका मैं कर सकता हूँ. ये हमारा अहम है. We have to again and again remember, ये हमारी विभूति नहीं है. This is the Lord's विभूति. He has given us that power. Otherwise, without His power, I cannot even speak. एक वाक्य भी नहीं बना सकते हम without that dynamizing energy. क्योंकि वो मन और बुद्धि जो है वो तो अपने आप में it is not a conscious sentient entity. कहीं से ये पावर आता है और फिर मन, बुद्धि और बॉडी को डायनामाइज करता है और उसके बाद हम दुनिया में क्या कुछ नहीं कर गुजरते. एंड वी आर केपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स. सो व्हाई टॉक ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ योर ओन कैरेक्टर? टॉक ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ द विभूति ऑफ भगवान. तो ड्रॉ आवर अटेंशन टू गॉड. ही हैज गिवन अस सो मेनी ऑफ गॉड्स ग्लोरीज. एंड इफ आई सी सम ऑफ दीज ग्लोरीज इन If I see some of these glories in myself, कि अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, अरे मैं तो वो कर सकता हूँ, और लोग हमको फेसबुक पर और मीडिया में खूब सराहना भी देंगे, and then there is this whole cycle of fame and accolades, and हम उसमें धंसते जाते हैं और क्या सोचने लगते हैं मालूम है कि ये तो मेरी उपलब्धि है. This is what I am capable of. तो इससे बहुत बड़ा डेंजर है. हम अभिमान में, एक पल में अभिमान में गिर सकते हैं. वी कैन फॉल एंड प्राइड हैज अ ग्रेटर फॉल. यू नो दैट इन इंग्लिश. प्राइड हैज अ ग्रेट फॉल. इसीलिए कबीर ने हमको बार बार याद दिलाया था. संत कबीर जो बनारस के होते थे, मत कर काया को अभिमान रे बंदे, मत कर काया को अभिमान, काया गार सी काची. गार यानी मिट्टी, कच्ची. गार मिट्टी सी की तरह कच्ची है तुम्हारी काया. What are you so? Kaya is just a symbol for all the outer things which we achieve, but literally, of course, it means skin. So it's a symbol of all these outer things that we take so much pride in. काया गार सी काची, हवा का एक पवन का
झोंका लग जाए, एक पवन का झटका लग जाए, काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी, मत कर काया को अभिमान रे बंदे। तो कबीर का मतलब तो यही था कि जो तुम कर सकते हो भगवान की महिमा मानो। हम भक्ति प्रकरण की ओर मुड़ रहे हैं, इसलिए there has been so much of importance given to, although Sankhya and Gyan Yoga in the previous chapters have also established very strongly in us as to what is that highest reality, that consciousness. Is it a king or a tyrant or a personality sitting up there and judging us, or a judge sitting there? No, Sankhya Yoga has already established that supreme consciousness, that vibrant energy, which even the scientists have discovered now, has, and they call it the string theory or something, or the vibration theory, which pervades every part of the cosmos and ourselves. Ourselves क्यों? नहीं, मैं तो solid हूँ, मैं तो एक जगह खड़ा रहता हूँ तो खड़ा ही रह सकता हूँ, नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो अपने बॉडी के एटम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे डालें, कोई भी बॉडी पार्ट का एटम, उस एटम के इर्द गिर्द न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूरॉन्स घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। एवरी एटम इन आवर बॉडी इज डायनामिक, सो वी आर जस्ट वाइब्रेटिंग एनर्जी ऑफ दैट पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। काहे को करे अभिमान। इसलिए पुराणों में लोमश ऋषि एक हुए थे, उन्होंने काकभुशुंडी को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम चांडाल पक्षी बन जाओ। तो दिस काकभुशुंडी, you know, actually even as a चांडाल he said, I am not going to sink into self pity, यानी कि हमारे साथ कितना भी बुरा हो, कुछ भी हो जाए, I am not going to sink into fear and self pity. These are the big destroyers of my character. भय और what is self pity? आत्मग्लानि. I am not going to sink in it because I know ये भी भगवान की विभूति है। बस उन्होंने ये कहा, चलो ये भी भगवान की विभूति है। ऐसे अगर हम जीने लगे, if we learn to live with this hand of God on us all the time, कि तब तो जीवन में आनंद ही आनंद है। Where can आनंद go? It will be part of us. It will be carrying us on its shoulders. In short, whatever is our nature, and we express our highest qualities as Shama, Shanti, Santushti, Dhriti, in all these what happens is God just shines through us. इसलिए हम कहते हैं कि इस आदमी में या इस व्यक्ति में या उस औरत में एक तेज है जो चमकता है, और कुछ नहीं। ये भगवान की महिमा है, because these are the highest qualities. They just shine through, but Bhagwan is also there in everything. What other qualities can we see? We can see in verse 35. बृहत् साम तथा सामनाम, यानी कि सामवेद में I am actually बृहत् साम. I am the most complex verse in Samved, which is one of the longest Veds, about 1875 verses. Brihat Sam is one of its most complex verses, and therefore उस complexity को, उस सूक्ष्मता को भगवान कहते हैं I am there. And also गायत्री छंदसामहम, छंदासाम, गायत्री, जब जो छंद तो बहुत है, मंत्र तो बहुत है दुनिया में, लेकिन सबसे पावरफुल मंत्र और छंद माना गया है कौन सा? गायत्री मंत्र. This even the German scientists have discovered. It is only 3 lines, and in each line there are only 8 syllables. But if when you chant it, this is what they have found, the German scientists, that every time you chant it, there are more than 1,400 or something, some such figure, more than 1,000 vibrations in the air which can be detected through their instruments. यानी कि वो इतना पावरफुल है कि आपके मन की, आपके बॉडी की, आपके हर अंग की और आपके रूम की वाइब्रेशंस को बदल सकता है चांट करके, 1000 टाइम्स चांट करके तो देखिए. तो गायत्री मंत्र, which is scientifically proved to be a powerful mantra which has these vibrations, it is actually the most ancient and the most continuously chanted right through the ages by the maximum number of people. अगर record breaking देखें तो गायत्री मंत्र is the oldest chanted by the maximum number of people in the world. लेकिन
अगर हम उसको पैरट की तरह, तोते की तरह करें और उसका जो मीनिंग है, उसका जो गूढ़ मीनिंग है, उस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ करें, तो उसका असर उतना नहीं होगा। ये तो हर मंत्र की महिमा है, इट्स नथिंग न्यू। सो if the power of the sun and the energy of the sun is being invoked in Gayatri mantra, ki I want that energy which through the sun is emanating into the earth and all around me, may that pervade me also and may I gain that power of the sun. उस एनर्जी को ध्यान में रखते हुए अगर हम करें तो ये मंत्र की महिमा कुछ और ही है। इट कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। गोइंग फॉरवर्ड, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्. Among the months, Masanam, I am Margashirshah, because among the months in the world, the most pleasant and the most beautiful are the coolest months are November, December, January. So I am Margashirshah, which means right now we are in the most beautiful month around January. ऋतुनाम कुसुमाकरः, जब सबसे सब ऋतुओं में मैं हूँ स्प्रिंग। कुसुमाकारः, कुसुमाकारः, the word itself tells you that it is the season of flowers, of spring, of rejuvenation. ऐसा लगता है कि धरती श्रृंगार करके बैठी हुई है। अब जाके देखिए in the forest and in some of the valleys and hills, ऐसा लगता है श्रृंगार करके धरती बैठी हुई है। It's so beautiful. Remember the Lord in all these glories. ये सब संसार की चीजें हैं, प्रकृति की हैं, जानते हैं, ओके, आई अंडरस्टैंड, बट प्रकृति को भी देखते हुए रिमेंबर दैट विदाउट द लॉर्ड दीज कैनॉट एग्जिस्ट. Shift the mind and attention once again to the Mahima of God. That is what the Bhaktas do, and that's why Bhakti has become a very powerful movement, not only in Hinduism, in all religions. In Islam, the Sufi movement is the Bhakti version of Islam, and it is really powerful. If you read Jalaluddin Rumi or Nizamuddin Aulia, or even in one sense even Mirza Ghalib was a Sufi. So these are saints, not Ghalib of course, but the others are saints. That means Bhakti can lead you to sainthood. It is not just Gyan. Okay, so Bhagavan is saying that's where I reside. Number 36 verse number. Dhyutam chalayatam asmi. Chalayatam, among the fraudulent. हाँ, छल भी लोग करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन उस फ्रॉड में भी द्यूतम, मैं एक हाईएस्ट एग्जाम्पल हूँ। क्या? द्यूतम यानी कि मैं हूँ गैम्बलिंग। कुछ रीजन होगा, भगवान ने कहा कि मैं गैम्बलिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉड। बिकॉज अगर देखा जाए, केवल महाभारत की दृष्टि से भी देखा जाए तो हम देखेंगे कि यस, अर्जुन सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ युधिष्ठिर inability to resist gambling, and he had to get into this Mahabharat war situation, Arjun now, because he had to get into this battle situation and all that gambling had caused all this trouble for everyone around, where is he now? Arjun right now is in the lap of, or let's say in the chariot of Krishna, listening to the highest possible knowledge. यानी कि हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, वो उसकी वजह होती है. There is a reason why we are where we are, and without a reason nothing can happen. And therefore when things don't go our way, which are not conducive to us, और हमारे अनुकूल नहीं होती, we cannot resist it, because there is a message in everything for us. No one can be luckier than Arjun, sitting there in the middle of the battle between two armies and listening to the highest possible knowledge from Krishna, from the mouth of the Lord himself. Arjun की तो बड़ी enviable position है भाई. It's the most beautiful position to be in. And then भगवान कहते हैं, yes, I power. In fact, छलयताम, if you say that मैं बुरी चीजों में भगवान नहीं है, in fact he is all pervasive, तो फिर अव्यय कैसे होंगे वो? अव्यय यानी ऑल परवेडिंग, वो कैसे होंगे? 9th चैप्टर में उन्होंने खुद कहा था, मया तदमिदम सर्वम, मैं हर चीज में हूँ, जगदव्यक्त मूर्तिना,
हर चीज में व्याप्त हूँ। जिस तरह से आइस क्यूब में या आइस में या बर्फ में पानी व्याप्त होता है, पानी हम कहेंगे कि ऊपर है कि नीचे है, अंदर है कि बाहर है, अरे नहीं, पानी इज व्याप्त इन एवरी कण ऑफ दैट आइस। इसी तरह भगवान कहते हैं ठीक है ये संसार है बट मया तदमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, मैं तो हर जगह हूँ। एंड इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट गॉड परवेड्स एवरीथिंग, देन व्हाट डू वी डू? वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दिस बॉडी एंड दिस अहम, कि ये मैं हूँ, ये तो मेरा बॉडी है, मेरा रंग रूप और मेरा औधा एंड आयु एंड कीर्ति एंड वैभव एंड प्रॉपर्टी, मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करने लगता हूँ और इससे हमारा पतन होता है। पतन यानी इट इज ए स्पिरिचुअल डाउनफॉल, क्योंकि सेकंड चैप्टर में उन्होंने कहा था कि एक बार तुमने संसार से अपना अटैचमेंट दिखा दिया, यानी कि आई लाइक समथिंग एंड आई वांट समथिंग, दैट्स द एंड ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। उन्होंने कहा था ध्यायतो विषयान पुंसः, ऐसी कोई चीज जिसका आप ध्यान करें जो बाहर की विषय है, विषय यानी ऑब्जेक्ट, एंड देन संगस्तेषु उपजायते, और बस मन उससे अटैच हो जाता है। पहले थॉट उसकी तरफ जाती है और थॉट अटैच हो जाता है कि अगर ये मेरे पास होता तो कैसा होता, एंड देन संगात संजायते कामः, उस अटैचमेंट से आता है काम यानी डिजायर। वो डिजायर इतना प्रबल होता जाता है कि कामात् क्रोधो भी जायते। उन्होंने सेकंड चैप्टर में कहा था बस अगर वो मुझे ना मिले तो आई एम रेस्टलेस, एंड इफ आई फेल इन obtaining that I sink into anger, and anger makes me blind and lose all my wisdom and knowledge and leads to my ultimate downfall। सेकंड चैप्टर में उन्होंने कहा था संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। तो इस बॉडी से और इस ऑब्जेक्ट से, संसार से आइडेंटिफाई करने से क्या फायदा? हर एक चीज में भगवान को देखो देखो, आप अपलिफ्ट होते जाओगे। दैट्स ऑल ही हैज सेड व्हेन ही सेड इन द 8th चैप्टर अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता सततम, और दूसरी चीजों के अलावा सबको छोड़ के मेरे ऊपर सततम, हरदम, यो माम स्मरति नित्यशः, हर समय मेरे ऊपर ध्यान रखो ना। आई एम गोइंग टू then become easily attainable to you. I will be as close to you. Spirituality and God will not be far from you. How? Tasyaham sulabah partha nitya yuktasya yoginah, ऐसा योगी नित्य युक्त, जो नित्य यानी हमेशा, युक्त यानी steady in this understanding of where my mind should be, such a yogi will tasyaham sulabah, will find me easily। ये तो उन्होंने 8th चैप्टर में ही समझा दिया था। फिर भी अर्जुन कहते हैं नहीं, माई माइंड इज टू कॉट अप इन दिस वर्ल्ड एंड इन दिस संसार एंड दिस बैटल, इन दिस महाभारत, सो प्लीज टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, टेल मी मोर। तो जैसे कि हम किसी स्वामी या महर्षि के आश्रम में अगर गए तो मन करता है बस वहीं बैठ के कहते रहे कि बस टेल अस मोर। उसी तरह अर्जुन भी अब उनका मन बन गया है। So Bhagwan will talk about some more of his mahimas in 36th verse onwards, and then we will see that tomorrow। Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate। Om Shanti Shanti Shanti। Hari Om Shri Gurubhyo Namaha। Hari